our specialist, Mr. Chandan. He's a co-founder of Blue Consulting Private Limited, which provides finance and accounts outsourcing services to large companies in India. Before starting Blue Consulting in 2005, he was heading the finance function at a JV of a Fortune 500 company. Mr. Chandan is also known as India's leading cost reduction expert. In last 25 years, he has mastered some amazingly effective techniques to create as much time as he wants. And we are actually scared on that. So his qualification is he's a CA and still he manages 4 to 6 vacations every year. Over to Chandan sir for his presentation. Thank you so much, Prerna, for the lovely introduction, which I shared with you. And I really welcome all the Manjil members and all the guests here, and especially my dear friend Rajesh, who has, come here. And just to tell you that Rajesh and me both studied together. We stayed at hostel Kirodimal College from 95 to 98. So it's been more than 20 years. So good to see you, Rajesh. Thank you. Yeah. Before we begin, I really want to acknowledge each one of you here for, your willingness to learn and keep your life more meaningful through the learnings. And I'll make sure that you get the best value of your time invested here today. So one request is that this session is going to be interactive. So I would request that you to participate in that. And as COVID has made us learn, all of us, that to, on the virtual platform, so it's easy for us to participate, and the participation mode is chat box. So I'll ask you to please participate fully to get best value out of this session. So let me just pull up my presentation. Yeah, so is it visible to everyone? Yes, Chandan, visible. Great, super. So I'll be keeping my video off so that you can fully focus on the slides and you're not distracted, because this session is about productivity and about how to take away distraction from your life, right? So let me just start this session. So the first, I want to tell you that this session is going to be a little longer. So approximately, I was expecting this to start at little early, but now we are at 9:05. So roughly, I think approx 90 minutes I would require to do justice with the topic. So I would request that please schedule yourself for that in case you need to attend any meeting, and if you can postpone that for 30 minutes or so, please do that so that you're not disturbed during the session. So let me start with the key takeaway, which you can expect by the end of this session. And that's my promise. And I'll deliver that by the end of this session. So the first takeaway is that you will experience that your bandwidth will easily skyrocket by more than 40%. So you will get those tools and the technology to do that in your life practically. Second, that after applying the learning from this session, you'll be able to create time worth 2 additional months each year, which means usually in a year we have 12 months, but you will experience time of 14 months in a year. That's the second takeaway you will experience. The third one is that your focus, which is usually, these days we all are distracted to some extent. So your focus will become 5x sharper. So guys, tell me if you get these takeaways, will that be great for you? If it is yes, then type a yes, a capital yes in the chat box. Capital yes in the chat box, so that, let's create the energy for this session, because energy is what will make this session amazing. So guys, I want each one of you to participate fully. That's the reason you are here. You are investing your precious time, right? Okay, so let me just switch off my video so that I can also fully focus on the slides. Just a minute. Super. So the session name is Productivity on the Steroid, and you will experience that fully after the, by the end of this session. Now, let me ask you one question. Do you feel that you always have less time and more things to do on your plate? Is it like
Some of you might be having, good balance, but usually I get to hear from people that, Chandan, we have a lot of things on our plate. We want to do a lot of things, but, we don't have time. I get reminded of a very famous dialogue of Amitabh Bachchan. You recall that? I think it was from Trishul or with Shashi Kapoor being his younger brother, and he says कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है? And he replies that मेरे पास माँ है. So I just want to replace that माँ with time. तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तो आपको ये कहना है कि तेरे पास क्या है? तो आपको बोलना मेरे पास time है. So after this session, you'll be able to say that with confidence, and the phrase that I don't have time will go away from your vocab forever. That's my promise. So will that be great for you guys? If that phrase that usually, by unconsciously, the moment somebody asks for your time, you say that, I don't have time. So this is going to get erased permanently from, from your being level. Now I want to ask you, when you don't have time or when you need to refuse a lot of people or a lot of work, so what is the impact of this feeling on your day-to-day life? How do you feel? Give me one word. Everyone would be having some feeling when you're constrained of time. So what's that, one word for that feeling? Everyone, I want you to look into your life. Sunil says it's frustration. Yes, Sunil, I can get that. I can relate with that. What else? What else? Unhappy. Pankaj says he feels unhappy when he is not. Yeah. Sandeep says stress. So give me that one word which you can relate when you feel you have more on your plate and you have less time. Rajesh says he feels stressed out. Okay. What else? Guys, please participate. This session requires your full participation. Otherwise, आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा. आपको already बहुत knowledge है. यहाँ से आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेके जाना है. So I want each one of you to participate. You will not get the value just by sitting mute on this platform. So it's a kind request to each one of you. Thank you so much. So just want to know that what would become possible for you. Just look into your life and just imagine that what would become possible for you if your productivity is up by 40%. आपको क्या, what would become possible? What you will be able to achieve if okay, not able to, Rajesh says not able to see my screen. So is my screen visible to everyone, guys? Please tell me in the chat box. Yes, it's visible. It's visible. Rajesh, maybe you can check your connection. Okay, sure. Okay, so you can relog in. Yeah, so let me come back. So what would become possible for you if your productivity is up by 40%? Guys, look into your life and let me know. Look into your life and let me know. What would you like to achieve, or what would become possible for you if your productivity is up by 40%, and which is going to happen by the end of this session? Tell me. Okay, growth and satisfaction, better state of mind. Okay, give me some more tangible things which you would like to achieve with more time in your hand, less time in office, which means more time with your family and Shu. Okay. What else? What else for other people? It seems that the Manjil, members are not very conversant or not very frequent with typing, right? So great. So Anupam, I got a big message. So almost daily scene of having less time, living many less severity of work, where I can make my passion grow. Okay, what's your passion, Anupam? Okay, so Prerna says on financial planning, she can increase her business further. Okay, Sandeep says more time to spend with friends and family. Yes, that's the, most of the people, when I ask, they say that friends and family, they don't have time. Super. So now let me, share a story with you. So it's a very short video of maybe, I think a minute. So please, watch this video. It's a very informative video. So let me just pull up this. Yeah.
Yeah. So, guys, what was your learning from this video? Can somebody share that? What was your learning from this video? Anybody? Yeah, Chandan, you need to be receptive. I think you can only learn when you assume that you know nothing. It starts with that. If you know that you know everything, then your learning stops. Yeah, so exactly. Thank you so much. Thank you so much, Sandeep, for sharing that. Exactly. So I would request please empty your cup as far as you know anything about time management or productivity management. So be receptive to learn, new tools and techniques today, and don't judge yourself. So if anything, any slides comes up and you're familiar with the stuff over there, just your little voice in your mind might say you already know this. So that will stop your learning. That will come as a wall in between your learning, right? So that was the only purpose of sharing this video, so that you can empty your cup, so that you can fill it with new knowledge. You get transformed on this subject. Great. So guys, before we move further, I want to share with you a very big paradox about time. And this paradox has a potential to transform your, relationship with time. So hold on and look at your screen very, very carefully when I pull up this paradox of time with or before you. The paradox of time is this. Time is what we want most. Listen very carefully. Time is what we want most, and time is what we waste most. How many of you are able to relate with this? If you're able to relate, type capital R in the chat box. Capital R in the chat box. If you're able to relate with this, that time is what we want most and time is what we waste most, in some form of or other, and we always regret after wasting that time. So this is the paradox of time, and you need to keep or make this as a brain tattoo. Take a print of the screen, you have a screenshot of the screen and put it somewhere so that you get reminded, because awareness is the real power, guys. Knowledge is not the real power, which is taught to us always. Awareness is the real power, because with awareness, you can use the knowledge. Otherwise, we all are storehouse of knowledge, but we hardly use maybe 1 or 2% of that. So once you put a cue somewhere where you can get to see this, it will create your awareness, right? So this is what I want to share with you. Now, I want to show you something. Many times life is like this picture. We have the resources, but we make poor decisions. Can somebody tell me what is wrong in this picture? Can somebody tell me? Maybe you can unmute and just say in case you're not comfortable typing. It should be the other leg should be on the chair. Exactly, right? देखने से ये लग रहा है कि ठीक है यार, ये लेस बांध रहा है, बंद तो गया ना, लेस तो बंद ही गया नीचे करके भी. But the more effective and the more productive way would have been if this guy put the right foot on the chair rather than the wrong foot. So this is what we are doing with time. If you look back and deeply in your life, this is what we all are doing. We have the resources, but we are making poor decisions. And this will get clear, and you will also get to have a technology to deal with that. Now, I want to ask you, and I could see that Sunil is there who deals with the energy, especially the solar. So I want to ask each one of you that how many types of energy resources are available on this planet? If we categorize them into 2 categories, what would be those 2 categories? Can somebody tell me? How many types of energy resources are available on this planet? If we need to put that into 2 categories, what those would be? 2 types, Chandan, renewable and non-renewable. Exactly. Thank you so much, Sandeep. Thank you so much. So actually, there are 2 types of energy resources. One is renewable and second is non-renewable. So tell me which type of this energy, fuel belongs to, renewable or non-renewable? Non-renewable. Non-renewable, right? So there is no rocket science. And tell me which one this belongs to? Renewable. Renewable, right? Again, no rocket science.
Now, let me ask you, which one is more costlier, guys? Renewable or non-renewable? In the long run, Renewable. Renewable, okay. in the Because they will never come back again. Even once they're exhausted, it But will let's talk not about, come. Sandeep, the present, maybe next 100 years, 200 years, 500 years, 1000 years. So right now, which one is more costlier? Which one is more costlier, renewable or non-renewable? Renewable. How come? Because these days, if you go and install the solar energy systems, it becomes more costlier than things which are the, cost is a relative term. You yeah. have to see the upfront cost. Yeah, so guys, let's come back. Let's not go there because that's not the Yeah. context of this, question. So, Correct. when you look at the cost, so renewables will always be less costlier because these are going to be available for millions of years, right? Still the sun will shine, the wind will blow, but non-renewable resource, once gone forever, it's gone. Whatever fossil fuel we are experiencing, and that is the reason they have spikes in their cost. Similarly, the time. Now tell me, in the context of renewability or non-renewability, tell me whether time is a renewable resource or a non-renewable one. Non-renewable. 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 Exactly. So can you relive a moment again? Time A once moment- gone, it can never come Oh. back again. Exactly. So a second gone is gone, a minute gone is gone, an hour gone is gone, and a day is gone. So whatever years have gone is gone. They can't come back. So that is the reason I want to mention it to you. I want to remind you guys that the time in your life is the most precious resource. Please invest or spend it wisely. Just like whatever money we earn, we don't spend it fully, right? We invest it somewhere. Same goes with time. And I tell you today that how to invest time, not spend. We are living our life by spending time. We are not investing time. सारी accounting ये करता है. Yeah, Atul, can you keep yourself on mute? Thank you. Thank you. So as I want to drive this point that, guys, please be careful while dealing or spending time, because time is a non-renewable resource. So whatever life you have, that is the only life we all have. Somebody would live, for 30 years, 40 years. So that is the non-renewability of time, which can open up or create again an awareness window in your mind. And as I said, awareness is the real power. Now moving on to this topic, can somebody tell me what this picture depicts? क्या आपको इससे समझ आ रहा है? इस पिक्चर से क्या समझ आ रहा है इस पिक्चर में? Can somebody tell me? Different modes of communication or connect. Okay. What else? Activities. It would be different to different people. और क्या लग रहा है? Activities and communication. Communication methods and activities, I think. Okay. Can you see that lot of activities, lot of things are going, the mind, It's showing a brain. It's showing a brain and so many things in mind to do. Exactly. So it is basically showing a distracted state of mind. So is it, अगर हमारे अंदर कोई अगर एक्सरे करके देखे तो आपको क्या लगता है कि ऐसा ही कुछ दिखेगा सभी के माइंड में? बिल्कुल इससे ज्यादा ही दिखेगा. एग्जैक्टली. तो ये तो थोड़ा सा कम है. आर्टिस्ट ने जिसने भी बनाया उसने थोड़ा सा जस्टिस किया कि ज्यादा कुछ नहीं डाला. हमारे में शायद ये दिखे भी ना कि कौन सी चीज कहां पर है ना? बिकॉज माइंड इज ऑलवेज मल्टीटास्किंग एट एनी गिवन टाइम. एग्जैक्टली. अभी भी आप लोग कोई ड्राइव कर रहा है, अभी आप लोग कोई शायद कुछ ना कुछ लैपटॉप पे भी साथ में काम कर रहे होंगे, चाय भी पी रहे होंगे, बात भी कर रहे होंगे. बीवी से सैटरडे है तो बच्चे की क्वेरीज भी आंसर कर रहे होंगे. सो दिस इज हाउ द माइंड लुक लाइक्स. अगर कोई इसका एक्सरे ले, कोई इसकी पिक्चर निकाले प्रिंटर पे, तो दिस इज हाउ अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड लुक्स लाइक. अब मुझे ये बताओ कि जो डिस्ट्रैक्शन होता है, वो क्यों होता है? What are the possible reasons for distraction? Lack of focus on one thing that you're doing. Okay.
अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब भी आपको टाइम के बारे में बोला जाता है कि जितने भी लोगों ने टाइम के ऊपर कोई भी ट्रेनिंग करी है, तो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, राइट? कि टाइम को मैनेज करो, टाइम को मैनेज करो, टाइम को मैनेज करो. नाउ कैन आई टेल यू अ ट्रुथ, अ हार्ड ट्रुथ? Is it okay if I tell you something very hard which will be difficult to digest initially? Sure, go Will that ahead. be fine? Okay. So here from today onwards, you need not to manage time. You need to manage something else. And this Manage is it. exactly. So you need not to manage time. You need to manage distraction. Guys, just close your eyes for a few seconds and just see that if whatever distractions are there in your life, it could be Facebook, it could be WhatsApp, it could be TV, it could be anything. अगर वो डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ से चला जाए या वो मैनेज हो जाए एक लेवल पे, तो क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा समय मिल जाएगा? 100%. राइट? सो आज से आपको यू नीड टू मेक दिस अगेन एज अ ब्रेन टैटू. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन एंड पुट इट समवेयर दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू नीड नॉट टू स्पेंड योर एनर्जी, क्योंकि टाइम को आप मैनेज नहीं कर सकते. टाइम इज अ समथिंग विच इज नॉट इन योर हैंड. आपके हाथ में क्या है? डिस्ट्रैक्शन. जो भी आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, उसको कैसे मैनेज करें? अब नया सवाल आएगा. आपने कहा चंदन ये तो ठीक है, आपने बता दिया कि एंड वी अग्री विद यू दैट we need not to manage time, we need to manage distraction, but how? So this is what this session is all about, कि आप distraction को manage कैसे करें. मैं आपको एक छोटी सी एनालॉजी देता हूं. बहुत बार आपने देखा होगा कि in your office or at your home you must have experienced lack of space. कई बार आपको लगता है कि यार स्पेस कम है और सामान ज्यादा है घर में या ऑफिस में. Have you ever experienced that? Guys, yes or no? Yes. तो आप क्या करते हो? आप स्पेस ज्यादा बढ़ाते हो कि चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो? ऑर्गेनाइज करते हैं. है ना? वही चीजें करते हैं. ऑर्गेनाइज होती हैं. That is the easy Reduce way out. करते हैं उसको. Exactly. अगर आपका 3 BHK है तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि सामान थोड़ा सा ज्यादा आ गया था 4 BHK ले लेते हो या 5 BHK ले लेते हो. ऐसा तो नहीं करते ना? नहीं. Exactly. हाँ, तो एग्जैक्टली ये एनालॉजी आप प्लीज कीप दिस इन द बैकग्राउंड. आपको जो चीजें उस समय काम की नहीं होती घर में, आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो या उसको ठीक से मैनेज कर लेते हो, राइट? और आपको ये भी आपको एक्सपीरियंस हुआ है कि पहले आपको जगह ही नहीं दिख रही थी, और जब आप उसको ठीक से मैनेज कर लेते हो तो आपको ज्यादा स्पेस नजर आती है उसी जगह पे. हैव यू एक्सपीरियंस दैट? Yes or no? Yes. Definitely. Yeah, same analogy goes with time, and this is the real secret of your productivity. That is the reason I told you with so much of confidence that you will experience easily with 40%. 40% मैंने बहुत कम बोला था, लोगों को 200% तक की productivity enhance हुई है. और one more thing I want to tell you guys, whatever I am sharing with you right now, it's completely 100% from the practical experience of first I applied it on myself and then thousands of people, and that is what I am sharing here with you. So there is nothing theory. Whatever I am sharing with you is completely 200% practical. अगर 1000 लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं. It's absolutely doable. आप चाहे कुछ भी किसी भी स्टेज पे हो जीवन के, आप एंटरप्रेन्योर हो, हाउस वाइफ हो, कुछ भी कर रहे हो, रिटायर्ड हो, still you can utilize these tools and technology which I am going to share with you. Now tell me, I think Atul told me that we are not focused, that's why we get distraction. मुझे real reason बताओ आप अंदर से अपने आप पूछ के कि आप distracted क्यों होते हो? Why we get distracted to a distraction? You can unmute and you can share, because it's all about sharing. Till the time you don't share and you don't go back in your life, this Overthinking, I guess. Overthinking, I guess, Chandan. ठीक है, और बताइए. And I want more members to participate. I think only 2 or 3 members are participating. If I talk of my experience in my business, I think whole of the day is spent on the firefighting, and then so many things to do that you don't even know which work to finish first. So it keeps on distracting the work one after the another, and at the end you find nothing has been achieved. Got it. What else? I want to hear from the new people who haven't spoken so far or who haven't typed so far in the chat. I think WhatsApp is a very big distraction. Okay. But हम क्यों होते हैं? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपका डिस्ट्रैक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है.
मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपका इंटरनल क्या स्टिमुलेशन होता है कि आप उसमें डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो? क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी अपनी नहीं बना पाते हैं कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। Focus. जब आता है तो सारा का सारा इकट्ठा ही करना है। ओके व्हाट सर एल्स? फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता, फोकस पे ध्यान नहीं देते हम लोग। फोकस पे ध्यान नहीं देते इसलिए डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। ओके व्हाट एल्स? चंदन, एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल वी आर ऑल इन almost the same age bracket and we want to achieve the maximum things. Secondly, as we rise, the responsibilities also increase, and because of the responsibilities we want to become multitasker, and I think that is one reason that we want to complete most of the task during a particular period of time, and we get distracted. Arey wo nahi hua, let me do that first, and again, as Mr. Vikas said, priority nahi kar pate hain. So these are some of the points. थैंक यू सो मच। देखो मैं आपको जो इनहेरेंट जो इस डिस्ट्रैक्शन के ऊपर पिछले 100 साल में जो रिसर्च हुई ना, वो दो चीजें कहते हैं। एंड लिसन वेरी केयरफुली, कम क्लोजर टू योर स्क्रीन सो दैट यू गेट इट फुल्ली। नंबर वन रीजन ऑफ getting distracted to a distraction is that we get instant gratification. We get instant gratification and our mind is wired like that. हमें बड़ा काम करने में डर लगता है, बड़े काम से हम भागते हैं, इसलिए हमें एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है। व्हाट्सएप और फेसबुक हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं, या फॉर दैट मैटर अगर हमें कोई लोग सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, कहीं पे भी वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, टीवी देखते हैं, वहां से आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। आर यू एबल टू रिलेट विद दैट? If you are able to relate to some extent, please type small r in the chat box. Small r in the chat box. That we get instant gratification when we get distracted to an object of distraction. Second is that, listen very carefully, that distraction makes us feel good and we are able to avoid the responsibility of important tasks easily. And moreover, the best part, listen carefully, the best part, we then shift the responsibility or blame on the object of distraction. जैसे WhatsApp मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है, टीवी मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, सिगरेट मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, ये सब चीजें हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन होता है उस पे हम डिस्ट्रैक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, जबकि हम ये नहीं देखते कि रियल मोटिव टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इज one, to get instant gratification. Second, distraction make us feel good and we are able to avoid responsibility of important tasks. क्योंकि हमें लगता है कल कर लेंगे, कल हम यहाँ हमेशा के लिए आए हुए हैं इस प्लेनेट पे, हमारी थोड़ी कोई टिकट कटनी है कभी, हम तो हमेशा रहेंगे, तो हम उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। तो बेसिकली जो पोस्टपोन जो करने की बीमारी है या प्रॉब्लम है, वो डिस्ट्रैक्शन से काफी कुछ लिंक्ड है। आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं कि आप पोस्टपोन कब करते हैं? बेसिकली डिस्ट्रैक्शन इज अ कॉज एंड पोस्टपोनमेंट इज एन इफेक्ट। गाइस, कैन यू रिलेट विद दैट? डिस्ट्रैक्शन एंड पोस्टपोनमेंट, जो हम पोस्टपोन करने की बीमारी है ना, हमें हर चीज को कल परसों पे ले जाते हैं, उसी वजह से होता है। And now what I'm going to give you an antidote to distraction. I'm going to give you today an antidote to distraction. So how many of you are excited to get the antidote of distraction? आज आपको ये antidote लग जाएगा ना, तो ये पूरी जिंदगी के लिए आपको distraction free कर देगा. If you're excited, please type excited in the chat box and bring some energy in this session, guys. We are very close-knit, people, so we can really, participate in this session. It's a very close-knit handful of people we have, right? Super. So your excitement will fuel me with energy and I'll be able to give you my best, right? So this antidote to distraction is the revolutionary ISD framework. अच्छा, मुझे बताइए ISD सुन के क्या दिमाग में आता है? What comes in your mind when you look at ISD, when you read ISD, when you hear ISD? Remember something? Does it gives you some kind of memory? ISD? International State Dial. Exactly. So International State Dial, तो ये आपको याद रहे इसलिए ये एक्रोनिम को मैंने ऐसे असेंबल किया है, ISD, और somehow जब ये असेंबल किया तो उसी ऑर्डर में ये बन गया।
तो ISD ये आपको ब्रेन टैटू कर लो। जब भी आपको डिस्ट्रैक्शन लाइफ में आए तो आपको दिमाग में लाना है कि माय एंटीडोट टू डिस्ट्रैक्शन इज ISD फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल स्टेट डायरेक्ट, राइट। और ये जो ISD फ्रेमवर्क है ना, ये इट वर्क्स लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे काम करता है? इफ यू जंप फ्रॉम अ बिल्डिंग, you are surely going to come down, and you know that this law doesn't differentiate whether you're a male, you're a female, you're a child, you are a age old, or you are Muslim, or you're Hindu, or you're American, or you're Indian, right? So it doesn't differentiate. Same goes with ISD framework. So if you get this ISD framework in your life, you will be at the driver's seat of your life when it comes to creating as much time as you want. So guys, tell me, are you ready to receive it? If yes, type ready 2 times in the chat box. Ready, so that I get to know your readiness, because you will only get this when you are absolutely ready 2 times in the chat box, everyone, because you need to do some work. You're not going to just get it by listening it, guys. And let me tell you one scientific reason why I am emphasizing again and again for you to participate. Guys, when you type or when you speak, it gives the learning, it takes the learning directly to your subconscious mind. केवल अगर आप सुनते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस केवल 25% होती है। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, it means by sharing what I'm asking, then it take the learning to the 100% level. So that is the reason, if you really want to entrust it to transform your knowledge, please participate. I'm telling you with some scientific research, believe me. Great. So मैं आपको पहले ISD के एक्रोनिम बताता हूं कि what each letter stands for, and then I'll explain one by one. We'll have again 60 to 70 minutes later on. I might skip something just to complete that on time. So the first letter of ISD, I stands for ideation. और मैं आपको वापस से वो स्टोरी जैन मास्टर वाली याद दिला रहा हूं। अगर आइडिएशन का कोई भी आपका रिलेशनशिप है माइंड में, तो उसको जरा पार्क कर दो, साइड में रख दो, ठीक है। उसको बाद में उठा लेना इन सेशन के बाद। मैं आपको ये नहीं कह रहा डिस्कार्ड कर दो, उसको थोड़ी देर के लिए पार्क कर दो। कैन ऑल ऑफ यू पार्क दैट? सो आइडिएशन विल बी हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग, इट हैज अ डिफरेंट लिंगो, राइट। Second is S stands for scheduling. Again, scheduling is not the way we schedule, it's something else I want to tell you. And please pardon me, I am experiencing some cough and cold, so thoda sa throat mera sore hai, so please excuse me for that in case my voice is not very clear. Now the third letter, this is the ब्रह्मास्त्र of ISD. तो मैं आपको जो बताऊंगा I और S के बारे में, that will be only 10%, but वो 10% बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए, ये 90% रिसीव करने के लिए। अगर आपने वो 10% को नहीं ध्यान से सुना, छोड़ दिया, तो ये 90% जो कि आपको मैं देने वाला हूं DDS, वो आपको नहीं मिलेगा। एंड दिस इज वेयर द real deal is, DDS, and I'll decode this acronym when we reach at DDS. So this is ISD, the mighty ISD framework, which has a potential to create 2 additional months time in your life and to increase your focus by 5x and increase your productivity by 40%. This is what you are going to get by the end of this session: ideation, scheduling, and DDS. So let's start, guys, with the first piece of ISD framework, and this is ideation. Ideation से पहले एक काम करते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं छोटा सा, जिससे कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट और क्लियर हो जाएगा और आप उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे अपनी लाइफ में। टेल मी व्हाट दिस पिक्चर डिपिक्ट्स। ये पिक्चर क्या दिख रहा है इस पिक्चर से आपको? What inference you can make out of this picture? सेपरेट सेक्शंस बने हुए हैं, लैंड के प्लॉट्स प्लॉटिंग हुई है, प्लॉटिंग कटे हुए हैं, राइट? यस। अब मुझे ये बताओ, अगर इसकी लैंड की प्लॉटिंग पे जो ये घर बनने हैं, विलास बनने हैं, अगर यहाँ कुछ भी ना बनाया जाए, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम? वेजिटेशन आ जाएगी, ग्रास विल ग्रो, कुछ ऐसा लगेगा, गंदगी आ जाएगी थोड़ी बहुत। और अगर लंबे समय तक ना करा जाए, अगर आपके घर के पास अगर कोई प्लॉट है, उसके ऊपर अगर कोई घर नहीं बना रहा है 5 साल से 7 साल से, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। I know this is a very dirty picture, but this is going to be happen. Yes.
सो सेम इज विद टाइम गाइस. अगर आपको ये नहीं पता होगा ना कि जो टाइम आपका फ्री होगा डिस्ट्रैक्शन के बाद, अगर आपको ये नहीं पता होगा उसका क्या करना है, अगर आप उसको लैंड के प्लॉट की तरह खाली छोड़ दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली दूसरे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ जाएंगे. कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपने कोई डिस्ट्रैक्शन किसी वजह से अपने आप से लड़ झगड़ के हिम्मत करके अगर आपने कर भी लिया डिस्ट्रैक्शन को खाली, तब दूसरा डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ जाता है. हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट? Yes. So I want to ask you what you are going to do with additional time which is going to be available to you from now onwards. Please take 30 seconds and make a note, or please write down what you are going to do specific, because right now you are in a zone, you are in that energy that you will actually be able to access that, you know, those things which really matters to you. आप क्या करना चाहोगे, क्या करोगे जिससे कि आप जब आपके पास वो एडिशनल टाइम मिले डिस्ट्रैक्शन से हटने के बाद आप वो काम कर पाए. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता ही नहीं होता कि एडिशनल टाइम का हम करेंगे क्या, इसलिए जब भी एडिशनल टाइम हमें मिलता है तो वापस से वो किसी और डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है. और इसको ना जितना आप स्पेसिफिक करेंगे ना उतना अच्छा होगा. जब आप कहते हैं ना अवनीत जैसे स्पेंड टाइम विद फैमिली, हो सकता है आपके घर में 5 फैमिली मेंबर्स हो और उसमें से केवल एक फैमिली मेंबर के साथ आप ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हो. Maybe your father, maybe your mother, maybe anybody else. So be absolutely specific in your ask. जैसे आप मंजिल नेटवर्किंग करते हैं और आप एकदम अपना आस्क बहुत क्लियरली बोलते हैं, तभी आपको रेफरेंसेस मिलते हैं. ऐसे ही आप अपने टाइम की जो आस्क है कि आपको करना क्या चाहते हो आप, please be very very specific and just consider that there is a genie which is going to fulfill all your wishes today. Just consider that and take my words, it is going to be fulfilled. Rajesh says, learn new skills related to my career. Vikas says, at office I will plan. But what you would plan, Vikas? Please be specific. Anupam says, I would be able to execute the plans we have not done before, plus would enhance my passion of traveling and car. So this is specific that you want to travel, and the more specific you are, yeah. So, okay. So Vikas says, at residence, spend more time with family. Who are those family members? Will go on holidays and plan expansion. Okay, Sunil, that's very specific. So guys, please keep these things in the background when we learn how to manufacture time or how to create as much time as you want. Great. So now let's start with the first piece of IDS ISD framework, and the first one is the ideation. अब बड़े ध्यान से आप सब एक कॉपी और पेन ले लीजिए. अगर आपके पास कॉपी और पेन नहीं है अभी, तो जस्ट टेक मे बी 10 seconds टू ग्रैब अ कॉपी एंड पेन, नॉट ऑन योर डिजिटल डिवाइस. आप सबके पास एक कॉपी एंड पेन है? अगर कॉपी एंड पेन आपके पास है तो आप लिखिए रेडी, सो दैट देन आई कैन स्टार्ट. If you have copy and pen ready with you, please type ready in the chat box. All of you, I want each one of you will be doing an exercise. Once you know the ideation, will experience ideation right here, right now, so that आपको इसको use करने में कोई भी problem ना आए, right? ठीक है, okay. So I think only 7-8 members are ready. What about others? What about others, guys? What about others? Believe you me, this is going to be the best technology you will ever have learned in your life. Believe you me, and it's going to be super simple and super effective. Super effective. A lot of CXOs have learned this, and they always message me whenever they do the ideation that Chandan, I'm so thankful to introducing this simple technology in my life. Right? Okay. अच्छा, आप मुझे ये बताइए. Great. Thank you so much for typing in your readiness. अब मुझे ये बताइए कि क्या आपको ऐसा फील होता है कि बहुत बार आपके बहुत सारे इश्यूज होते हैं माइंड में, एंड दोज आर ऑक्यूपाइंग योर प्रोसेसिंग पावर ऑफ योर सीपीयू व्हिच इज इन माइंड, राइट? ऐसा बहुत बार होता है आपके पास कि जो इश्यूज होते हैं वो आपके माइंड में घूमते रहते हैं, आसपास आपके मंडराते रहते हैं, एंड इट कीप्स बोदरिंग यू, और जिससे कि आपकी फोकस करने की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है. और ये जो इश्यूज हैं ये बेसिकली सुबह ही चालू हो जाते हैं. द मोमेंट यू गेट अप फ्रॉम योर बेड, यू विल एक्सपीरियंस कि आपको उसी समय 4-5 तो आपके बेड के पास ही खड़े होते हैं वो इश्यूज. ऐसा आप एक्सपीरियंस करते हैं? हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट गाइस? यस चंदन, दैट्स राइट. आपके इश्यूज सुबह से ही आपके 7-8-10 तो खड़े ही होते हैं बेड के आसपास. यस
है ना। तो हाँ, ऐसा अगर हम कोई आपको ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए कि कोई भी इशू आपकी लाइफ में हो, छोटा बड़ा और सुपर बड़ा, कितना भी बड़ा इशू हो लाइफ में, चाहे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड बड़ा इशू हो, हम उसको एक लेवल पे एक तो शांत कर दें उस इशू को, वो आपके मेंटल जो प्रोसेसिंग पावर है उसको बिल्कुल भी कंज्यूम ना करे। सेकंड, आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए। हाउ वुड दैट बी? वुड दैट बी ग्रेट और वुड दैट बी मैजिकल? Guys, would that be great or magical? Okay, only for Sunil it is great. Only 2 people. Okay, Anshu says magical. Okay, so guys, you will experience Magical. actually a magical impact, as if you got a genie in your hand and it is taking care of everything, right? So I am introducing ideation to you in a very different format, right? So far, whatever you have learned about ideation, just park it for some time, or you may like to dump it after this. So this ideation technology constitutes around 2 questions, 2 powerful questions. So ये जो 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ये 2 क्वेश्चन आपको अपने माइंड से पूछने हैं, और ये माइंड से आपको जो पूछने हैं, हो सकता है आपको अभी सुनने में थ्योरेटिकल लगे, बट अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तब आपको उसका इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले अपनी लाइफ से कोई भी एक इशू, एनी वन इशू विच इज बॉदरिंग यू राइट नाउ, जो आपको सबसे ज्यादा बॉदर कर रहा है, आप उसको लिख लो एक जगह पे, और आप ये बोलो कि चंदन मुझे इसको सॉल्व करके दे दो, और ये मेरे माइंड की ना बहुत ज्यादा मेंटल जो स्पेस है, प्रोसेसिंग पावर है, इसको ये कंज्यूम कर रहा है, इसको हटा दो यार मेरी माइंड से, और इसका मेरे को सोल्यूशन भी दे दो। सो नाउ यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट। Everyone have picked up one important issue which is right now in your mind. If yes, please type capital Y in the chat box so that I know that you have picked up, each one of you, and then I can proceed. Capital Y. Everyone, if you have identified one issue which is bothering you and consuming your processing power of your brain or your mind, whatever you call it. Great. ठीक है, तो आपको ना अपने माइंड से, आपने कहावत सुनी है, द माइंड इज एन अमेजिंग सर्वेंट बट अ वेरी बैड मास्टर। आपने ये थियोरेटिकली कहानी सुनी या ये कहावत सुनी है ना, कि माइंड इज अ ग्रेट सर्वेंट बट अ वेरी बैड मास्टर। तो आज हम माइंड को उसके सर्वेंट वाले रोल पे लेके जाएंगे, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये हमारा सर्वेंट बन जाएगा। दिस इज व्हाट द रियल पर्पस और रियल रोल ऑफ माइंड इज। जैसे हमारे हाथ पैर जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, माइंड इज ऑल्सो लाइक अ पार्ट, इट्स अ वेरी इनविजिबल पार्ट, राइट? वी कांट सी एंड टच इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस, इट्स अ इनविजिबल बॉडी पार्ट। तो उसको जैसे हम अपने हाथ से काम लेते हैं, अपने पैर से काम लेते हैं, अपनी आंखों से काम लेते हैं, अपने सेंसेस से काम लेते हैं, ऐसे हम माइंड से काम लेने लगेंगे, नॉट अदर वे अराउंड। अभी माइंड हमसे काम लेता है, बिना हमसे पूछे कहीं भी चला जाता है, राइट? तो आपको अपने माइंड से, जैसे आप अपने सर्वेंट से कोई काम कराना होता है तो आप थोड़ी उससे कुछ झिझकते हो, बोलते हो, आप उसको ऑर्डर देते हो ना। तो आपको आज अपने माइंड को ऑर्डर देना है, राइट? तो ये अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रख लीजिए कि आपको अपने माइंड को अभी ऑर्डर देना है। और मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपको लिखने हैं अपने नोटपैड पे, और फिर जो भी दिमाग में आए जब आप अपने माइंड से ये पूछोगे, और उसको लिखते जाना है, रुकना नहीं है, ठीक है? और मैं आपको ये बता दूं, ये 2 क्वेश्चन आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को एड्रेस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपके कॉन्शियस माइंड को शांत करता है, एकदम स्टेबलाइज कर देता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड को टैप करने का जो तरीका है वो है सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको ये तो सब अग्री करेंगे मेरे से कि हम माइंड के 2 टाइप करते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। आर वी ऑन द सेम पेज ऑन दिस? यस यस। अच्छा, मुझे ये बताइए कौन सा पावरफुल है, सबकॉन्शियस या कॉन्शियस? सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस, कोई इसमें डाउट नहीं है। वी आर ऑन द सेम पेज। थियोरेटिकली हमें पता है, पढ़ते आए हैं, बुक्स में भी पढ़ा है, प्रवचनों में भी सुना है, सब जगह सुनते हैं कि सबकॉन्शियस बहुत पावरफुल है। और सबकॉन्शियस रफली कितना परसेंटेज होता है अगर 100 में से देखें तो? मतलब उसी से पता चल जाएगा कि कौन सा पावरफुल है। It should be more than 90%. हाँ, तो समवेयर अराउंड 88%। सबकी अलग अलग थ्योरी है, बट आपके हिसाब से हम 10 और 90 का मान लेते हैं कि 10% इज कॉन्शियस एंड 90 इज सबकॉन्शियस। तो जो ज्यादा है ऑब्वियसली वो मोर पावरफुल होगा, ठीक है ना? तो अभी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ये 2 सवाल पूछेंगे, और इससे हम पहले क्वेश्चन से कॉन्शियस को एड्रेस करेंगे। देखिए, ये बहुत सिंपल है, आप इसको शायद एक्सपीरियंस करेंगे जब अगर आपने मेडिटेशन की है। मेडिटेशन का केवल सिंपल पर्पस होता है आपके कॉन्शियस माइंड को शांत कर देना।
आपके कॉन्शियस माइंड को शांत कर देना, क्योंकि ये जितने भी क्लटर चलता है आपका, या जितना भी डिस्ट्रैक्शन आपका चलता है, ये कहाँ चलता है, कॉन्शियस में या सबकॉन्शियस में? कॉन्शियस में। एग्जैक्टली सो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो कि ओनली 10% है, वहां आपके सारे डिस्ट्रैक्शन मौजूद होते हैं, वहीं से आप मल्टीटास्किंग करते हैं, जो भी आप करते हैं वो कॉन्शियस से करते हैं। तो मेडिटेशन क्या करता है, आपके कॉन्शियस माइंड को शांत कर देता है। जैसे ही वो शांत होता है तभी आपको बड़ी शांति महसूस होती है। वो कुछ नहीं होती, केवल आपका, इट्स जस्ट लाइक, अगर आप इसको रिलेट करें कि आपके कंप्यूटर पे अगर 15 प्रोग्राम खुले हों तो आपकी सीपीयू की जो काश मेमोरी डिलीट हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली तो जो रैम है वो स्लो हो जाती है ना, अगर 4 GB हो, 8 GB हो, 16 GB कर लो, अगर 15 प्रोग्राम खुले हो वर्सेस अगर आपका एक प्रोग्राम खुला हो, फर्क है ना। यही फर्क आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में होता है। जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है तो आपको एक अलग तरह की पीस परमिएट करती है आपके माइंड में, आपकी बॉडी में। ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपको यही करके देंगे। तो now let me just present these 2 powerful questions guys, and be ready because these are going to jolt you completely and these are very very simple thing। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, जो सिंपल चीजें होती है ना, दोज आर द इजीली इग्नोरेबल। हम सबको ना कॉम्प्लिकेट करने की आदत पड़ गई है लाइफ में। तो आपको ये सिंपल क्वेश्चन सिंपल लगेंगे और आपको लगेंगे शायद ये यूजफुल ना हो, बट आपको फायदा कब होगा, जब आप उसको अभी मेरे साथ एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो हम इसको, पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क फ्रॉम योर माइंड अबाउट दैट इश्यू, और इसको कोई भी चेंज नहीं करना है, इसमें एक अक्षर भी इधर से उधर नहीं करना है। इसको आप लिखिए अपने नोटपैड पे, व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय माइंड रिलेटेड टू डैश डैश डैश, उसमें आपको फिल करना है वो इश्यू। व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय माइंड रिलेटेड टू business development plan, related to website, related to book writing, related to relationship with spouse, related to my health, related to anything what। तो आपका जो भी आपने इश्यू पिक करा है अभी, उसको आप ले आओ और उसमें ये लिखो व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय माइंड रिलेटेड टू, और अपने माइंड से एज ए सर्वेंट ये पूछो। जब आप ये पूछोगे तो आपको 2-3 चीजें होंगी। माइंड में केवल 2 ही चीजें रहती हैं, थॉट्स एंड इमोशंस। इमोशन और फीलिंग ऑलमोस्ट एक ही मान के चलिए, अभी हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। या तो आपके माइंड में उस इश्यू से रिलेटेड थॉट्स होंगे, या आपके माइंड में उस इश्यू से रिलेटेड इमोशंस या फीलिंग्स होंगे। जैसे मान लो जेलेसी है, एंजाइटी है, फियर है, किसी का गला दबाने का मन कर रहा है, किसी को गोली मारने का मन कर रहा है, या खुद कुछ करने का, जो भी आपके थॉट्स या फीलिंग्स और इमोशंस आ रहे हैं उसको आप लिखते चले जाइए। और उसको आपको रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। वो आपके 10 हो, 15 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 2 लाख हो, 1 करोड़ हो, लिखते जाओ उसको अभी आप। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट टेक नेक्स्ट 30 seconds एंड स्टार्ट राइटिंग। डू नॉट स्टॉप एंड डू नॉट से कि ये थोड़ा इडियोटिक है जो मैं लिख रहा हूँ। जो हो लिख दो, कोई आपका देख नहीं रहा है, आपके पास है, वो किसी को देना मत, फाड़ के फेंक देना बाद में इस एक्सरसाइज के बाद। एंड वंस यू आर डन, प्लीज टाइप डन इन द चैट बॉक्स राइट नाउ, प्लीज डू दैट guys, I want each one of you to do that, otherwise आपको बाद में इसकी पावर नहीं मिलेगी। अभी आप उस स्पेस में हो, आप कर पाओगे इसको। जो भी आपके माइंड में आ रहा हो उससे रिलेटेड, उसको आप लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। जो भी थॉट्स आ रहे हो, जो भी फीलिंग्स आ रही हो, जो भी इमोशंस आ रहे हो, गुड बैड अगली, डू नॉट केयर। एंड वंस इट इज डन, प्लीज टाइप डन इन द चैट बॉक्स। Guys, if you are done, please type done, and now start finishing up. Even if you haven't finished, please start finishing up. And I want few people to share. What did you experience once you did that? This simple one. What did you experience? I think I see your point here, Chandan. Yes, it's a relief. It's a release, right? So अभी आपको आपका जो माइंड की जो स्पेस में चल रही थी चीजें, वो एक पेपर पे आ गई, right? Is this feeling, everyone is feeling lighter after writing all the thoughts and the emotions related to that issue? Yes, because you were able to list it out, and Exactly. you know what all you have to
find and what you all you have to do. नहीं, वो नहीं करना, बस केवल आपको ये लिखना है No, अभी no, आपको करना क्या है वो बात की बात है, but वो you बात are की able बात to list it out. बस 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 जो चल रहा हो ना माइंड में, गुड बैड अगली, डू नॉट केयर। हम सबके माइंड में बहुत सारी अगली चीजें चलती रहती हैं किसी भी इश्यू से रिलेटेड, उसको आपको केवल कन्फ्रंट करना है, उसको अपने माइंड से पूछना है कि बता क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, ठीक है। सो दिस इज एन एक्सेस टू calm down your conscious mind. This question is an access to calm down your access mind. Now the real deal is question number 2. The real deal is question number. इससे क्या हुआ कि आपका इशू शांत हो गया, आपके माइंड में होवरिंग नहीं होगी, जैसे ड्रोन घूमते हैं ना हमारे आसपास, ऐसे वो घूमते हैं इश्यूज, तो ये आपका बंद हो जाएगा, एटलीस्ट आपको ये फायदा होगा। Now this is only 20% of the scheme. Now the 80% benefit you are going to get through the question number 2. So now be ready, and now this question number 2 is now on your screen. अब आपको अपने माइंड से ये पूछना है और इसको बिल्कुल अपने माइंड में बोलना है। अगर आप ऐसी जगह पे बैठे जहां आप ये वर्बली बोल सकते हो, तो ये अपने माइंड को बोलिए आंख बंद करके, हाउ कैन आई डील विद इट पावरफुली। ये वर्ड पूरा एग्जैक्टली ऐसे ही बोलना है आपको, एज इफ ये मंत्र है ना। हाउ कैन आई डील विद इट पावरफुली, और ये करने के बाद इमीडिएटली आपको लिखते जाना है जो भी आपका माइंड आपको सोल्यूशन दे, गुड बैड अगली, बेकार हो, प्रैक्टिकल हो, इम्प्रैक्टिकल हो, वो होगा कैसे होगा उसमें नहीं जाना, हाउ के हवा में नहीं जाना है आपको। केवल इस समय जो आपका माइंड बताए वो लिखते जाओ, उस इश्यू से रिलेटेड जितना भी लंबा हो लिखते जाइए, उसको बाद में देखेंगे फिर उसको। Just start writing. Ask this question to your mind, how can I deal with it powerfully? और फिर जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उस इश्यू से रिलेटेड लिखते जाइए, जो भी सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे इम्प्रैक्टिकल हो। Keep writing, do not think, just keep writing. You are already getting the solutions around your problem. Do not judge yourself with the whatever you are writing right now. Just be in that space and just keep writing. And once you're done, just this is an exercise just to give you a little taste in these 2 minutes. If you're done, type done in the chat box and start finishing up right now, because we have a limited time right now for this session. I just want you to taste it maybe slightly, yeah, so that you can do it on your own by spending maybe 10-15 minutes. Guys, start finishing up and type done in the chat box. Start finishing up, start wherever you are, just leave it right now and start finishing up and type done in the chat box so that we can move forward. I have a lot to cover. Guys, all of you, only 3 or 4 people have done it. Please type done in the chat box. Start finishing up. जहां भी आप हैं छोड़ दीजिए उसको, अभी छोड़ दीजिए अभी उसको, ठीक है। अभी जब आपने इसको लिखा, so any one person you can share your experience, just very small. What did you experience? आधा पौना घंटा। Hi, this is Anupam. So when I wrote 2 of my questions, so one, what I understand is I listed down my problems, and then on the basis of the problem, I listed down the solutions which I wanted to have. Okay. Without actually thinking whether do I have the resources to meet it or not, but yes, I made a plan. So if I am able to execute the plan, my things are done. ठीक है, उसका आपको आज सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपके एग्जीक्यूशन कभी भी जिंदगी में कोई आपको ये जो कॉन्वर्सेशन है एग्जीक्यूशन की हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, ऑटो पायलट पे चला जाएगा आपका एग्जीक्यूशन। चलो सर, रियली नाइस। ठीक है, उसमें मतलब मैंने सब एक्टिविटीज कर दी, असाइन रिसोर्सेज एंड असाइन देयर रिस्पांसिबिलिटीज एंड track these resources to make this this target achieve for you. Wonderful. But yes, I'm waiting to listen more. Yeah. Super. अच्छा, थैंक यू सो मच अनुपम फॉर शेयरिंग दैट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कभी आपको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि कभी जब आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त, a very good friend of you who is in a problem and he comes and meet you and he shares his problem,
और आप उसको सुनते हो और आप उसको कोई ऐसा सॉल्यूशन देते हो जिसपे आपको भी बाद में अचंभा होता है, अरे यार ये मैंने बताया है। Agreed. वाह, हैव यू एवर Agreed, एक्सपीरियंस agreed, दैट? agreed. Yes, many times, many है ना? times. सबको लगा होगा ना, पता है ये कहां से आता है ये सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन आपके सबकॉन्शियस से आता है। उस समय आपका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल शांत होकर सुन रहा होता है और आपका जो डायरेक्ट ओपन, जैसे दरवाजा खुलता है ना, ऐसे आपके सबकॉन्शियस का दरवाजा खुलता है। वहां आपकी इतनी चीजें स्टोर्ड हैं, इतने एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड हैं, इतनी नॉलेज स्टोर्ड है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और खटाक से आप वहां से सॉल्यूशन, उसको गोल्डन नगेट निकाल के दे देते हो और आपको भी बाद में लगता है यार मैं तो अपने आप को मतलब निकम्मा ही समझता था, बट मैंने भी इतना बढ़िया सॉल्यूशन दे दिया इसको। और आपका दोस्त भी कहता है वाह यार मजा आ गया, जिंदगी पलट गई मेरी। तो ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि ताकि आपको ये एनालॉजी याद रहे। और ये आपको जो आइडिएशन करना है, बेसिकली जब भी आपके माइंड में कोई भी इश्यू चल रहा हो, आपको माइंड में नहीं रखना है। ऑलवेज थिंक ऑन पेपर, एंड यू कैन थिंक ऑन पेपर ओनली थ्रू आइडिएशन। सो आइडिएशन विल हेल्प यू टू काम डाउन योर कॉन्शियस माइंड, विच यू विल बी एबल टू यूज विद मोर फोकस। अगर आपका कॉन्शियस माइंड, सोचिए कि अगर आपके कॉन्शियस माइंड में कोई इश्यू नहीं चल रहा, just try to imagine how fast and how focused it would be. Do you agree with me that? Yes. Right, sir. I do. And second, it will also give you an access to the subconscious mind, जहां से आपको वो solutions निकाल के दे देगा। तो ideation step one, it will calm your conscious mind so that your concentration, your focus will be 10x sharper. Second, it will also give you golden nuggets from your experience so far. जितनी भी आपने ट्रेनिंग्स करी, जितने भी आपने बुक्स पढ़ी हैं, जितने भी आपके अपने एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जितने भी आपने स्पिरिचुअल कोर्स करे हैं, वो सब आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है। जो भी आपने अपनी सेंसेस से देखा है, सुना है, चखा है, जो भी है वो सब स्टोर्ड है वहां पे। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली आइडिएशन आपने कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। हमेशा आइडिएशन आपको एक पेन और पेपर के साथ करना है, जैसे आपने अभी किया है। डिजिटल नहीं करना है कभी भी। डिजिटल आपका, आज भी हमारा माइंड वैसे वायर्ड नहीं है, क्योंकि मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं इसको इवॉल्व होने में, और डिजिटल से इवॉल्व नहीं हुआ है। शायद अगले और कई हजार साल लगेंगे डिजिटल के लेवल पे इवॉल्व होने में। आज भी हम जब लिखते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस पे जाता है। कभी भी आइडिएशन की हैबिट नहीं बनानी है, इसकी आदत नहीं डालनी है, और इस पे 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने हैं। थर्ड, आपको आइडिएशन कब करना है? जब भी आपका कोई इश्यू आपके माइंड में हैवी हो रहा हो और आपके माइंड की प्रोसेसिंग पावर को ऑक्यूपाई कर रहा हो। ये आपको बेसिकली एक इसका जो कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आइडिएशन। Guys, tell me, was it powerful for you or not? If it was powerful, please type capital P in the chat box. Because I want to just know whether we all are on the same page or not. This is the way to assess that. That is the reason I keep asking you. और जब आप उसको लिखते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस में भी रजिस्टर होता है, क्योंकि केवल सुनने से, जैसे मैंने आपको बताया, आप लर्न नहीं करते हैं। उसके साथ आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो टाइपिंग हो, then it helps you. तब आप इसकी जो रिटेनेबिलिटी है इस नॉलेज की, वो एटलीस्ट 20x बढ़ जाती है और आपकी अवेयरनेस में रहता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा ISD का सेकंड पार्ट है, सेकंड लेग है, वो है स्केड्यूलिंग। स्केड्यूलिंग में मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन अभी मेरे पास जो अच्छा संदीप, हमारे पास कब तक का समय है, कब तक कर सकते हैं हम इस सेशन को? No, you can take your time. I think people are connecting, so don't bother. Okay? I think. Yeah. Is it okay if we continue this till 10:45? Will that be fine with all of? I have no problem. I think most of us will not have a problem. ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी, that is why we record. Yes. Chandan, before the start you said 90 minutes, so now from 10:30 you have extended 15 minutes. I don't think there will be any problem to that, and the subject is very, very important for the people. Yes. Subject is very important, interesting. ठीक है जी, थैंक यू सो मच सुनील फॉर अलाउइंग मी। सो स्केड्यूलिंग में आपको देखो, स्केड्यूलिंग अभी हम कैसे समझते हैं, हमारे लिए स्केड्यूलिंग क्या है। आपके माइंड में जब स्केड्यूलिंग वर्ड आता है तो क्या चीजें दिमाग में आती है? पहले क्या 2-3 वर्ड दिमाग में आती है द मोमेंट यू अटर स्केड्यूलिंग? Planning,
planning, Ta- time कैलेंडर, calendar. Target, टास्क, है ना, यही सब आते हैं, ठीक है? task, breakup of the task, हाँ, target date, ठीक है। और आपका responsibilities, and the amount of effort. एग्जैक्टली एंड मुझे जेन्युइनली बताइएगा, कैन आई अज्यूम दैट ऑल ऑफ यू हैव अ लव हेट रिलेशनशिप विद योर कैलेंडर एंड टू डू लिस्ट? ऑल ऑफ यू हैव। To-do list सारी खत्म ही नहीं होती। खत्म ही नहीं होती ना, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। जैसे वो मारुति का वो ऐड मतलब वो करे वो पापे कॉपी पेट्रोल भूल खत्म ही नहीं जाती है होगी, और वो भूल जाते हैं, मतलब टू डू भूल लिस्ट जाते तो हैं ना। हाँ, तो नहीं मतलब आता कि आप कई बार ऐसा आता हो ना, झल्ला जाते होंगे, यार भाड़ में जाए टू डू लिस्ट और कैलेंडर, मैं नहीं कर रहा यार ये। हाँ, और फिर 15 दिन के बाद लगता है यार पहले ही थोड़ा बेटर था। वो कॉपी निकालो दोबारा। हाँ एग्जैक्टली, है ना, ये होता है ना। ठीक है, तो अगर ये आज हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाए तो कैसा रहेगा ये? बढ़िया है मालिक, बढ़िया हो जाएगा। पार्टी होती है। ठीक है, तो देखो हमें ना पहले जिंदगी में ये पता होना बहुत जरूरी है कि स्केड्यूल करना क्या है। हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू पैक आवर कैलेंडर एंड टू डू लिस्ट विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग विदाउट क्वेश्चनिंग वेदर इट इज रेलिवेंट फॉर अस और नॉट। ये एक बहुत बड़ी अवेयरनेस आपको अपनी जिंदगी में लेके आनी है, और ये इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आपको इतनी पावर एक्सपीरियंस होगी अपनी लाइफ में, आप कहोगे नाउ आई एम एट द ड्राइवर सीट। अब जो आपकी गाड़ी एक तरह से BMW और मर्सिडीज है, लेकिन आप उसको चलाते कैसे हो? बिल्कुल एकदम टैक्सी की तरह, आप पीछे बैठ जाते हो, आपका जो ड्राइवर है वो कहीं भी ले जाता है जहां उसका मन हो। अब आपको ड्राइवर सीट पे आना है, तो जैसे ही आपको स्केड्यूलिंग का आपको साइंस पता चलेगा, हालांकि मैं स्केड्यूलिंग को बहुत समरी उसमें बताऊंगा, क्योंकि स्केड्यूलिंग को पूरा बताने के लिए मुझे 3 घंटे चाहिए, ठीक है? वो कभी हम सेशन करेंगे, बट अभी मैं आपको केवल उसका एक ग्लिम्स दूंगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि स्केड्यूलिंग का 90% आपको ये अगर क्लियर हो जाए कि स्केड्यूल करना क्या है, अगर आपको केवल ये अवेयरनेस भी आ जाए ना, तो आपका जो क्लटर है वो खत्म हो जाएगा लाइफ से, ठीक है? तो उसको करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक ये वीडियो दिखा रहा हूं। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, तो यू नीड टू बेयर विद मी। ये 7 से 8 मिनट का है, तो प्लीज कीप योर फुल अटेंशन। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, ये 7-8 मिनट का वीडियो है, और अगर आपने ये पहले देखा हुआ है तो भी आप इसको दोबारा देखेंगे मेरे साथ, यहाँ पे हम सब लोग, ठीक है? और इसको पूरा ध्यान से सुनेंगे। ये आपकी लाइफ को आज बिल्कुल पूरी तरह से ऑल्टर कर देगा। ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से ऑल्टर कर देने वाला है, ठीक है? मैं आपको एक बार दोबारा से शेयर करता हूं ये करने के बाद। एक मिनट, ये पूरा वीडियो आपको देखना है, और आपको जिंदगी में सारे आंसर्स मिल जाएंगे।
Yeah, so guys, did you get the message in this video? So what is your learning from this video? Can somebody share that? Most important things to do first, and then the less important, and the rest all what is not important to you, you can do it in the free time. Absolutely. So आपको करना ये है कि जो आपके जितने भी काम हैं जिंदगी में, उनको आपको 3 कैटेगरी में बांट देना है, और वो 3 कैटेगरी इस वीडियो में बताई थी। आप बता सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? 3 कैटेगरी: रॉक्स, पेबल्स एंड सैंड। तो आपके जितने भी काम है लाइफ में, टू डू लिस्ट पे, कैलेंडर पे, जस्ट बाइफरकेट देम। पहले आप अपने जितने भी आज की डेट में पेंडिंग काम है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और उनका एक बाइफरकेशन कर दीजिए और अपनी टू डू लिस्ट में 3 कैटेगरी बना लीजिए आप। 1 is rocks, 2nd is pebbles, and 3rd is sand. Always start your day, always start your time, always focus on rocks. जैसे इसमें बताया कि अगर आपके सैंड्स और पेबल्स छूट भी जाते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जो आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोज शुड बी टेकन केयर फर्स्ट। तो आपको ये इसके ऊपर काम करना है। तो आप मुझे ये बताइए, सम ऑफ यू like, are you getting some clarity from this video? If you're getting clarity, please type clarity in the chat box so that I just get to know whether you got some value from this video or not. Are you getting some clarity? आपको ये पता चल रहा है कि कैसे जो आपकी टू डू लिस्ट है, कैलेंडर है, कैसे आप उसको रीजिक कर सकते हैं इजीली? ग्रेट। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। मैं आपको छोटी सी 2 स्टोरीज बता रहा हूं। आपने अगर एक बुक नहीं पढ़ी है तो उसको नोट कर लीजिए। एक बुक है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। इट इज बाय ब्रोनी वेयर। ये जरूर पढ़नी है आप सबको। और उसमें ये ब्रोनी वाज अ ऑस्ट्रेलियन पैलिएटिव केयर नर्स। पैलिएटिव केयर नर्स वो होती हैं जो लोग लास्ट में मर रहे होते हैं तो उनको ये सपोर्ट करती थी लाइफ के उसमें। और in Sydney, she used to stay in Sydney, and Sydney, you can understand that in Australia, if somebody is affording a nurse, they would be very rich people. तो उनका जो उसने जो अपने रिकॉर्ड, अपनी बुक लिखी, करीब 300-400 लोगों के साथ उसने ये एक्सपीरियंसेस शेयर करे, और उसमें जो सबसे टॉप रिग्रेट थी, उसमें सबसे बड़ी रिग्रेट थी, आई विश आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। हम सब लोग एक रेस में भाग रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या। तो जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं आएगी तो आपको लास्ट में जब आंख बंद होने वाली होगी, व्हेन यू विल बी टेकिंग योर लास्ट ब्रेथ, यू विल आल्सो रिग्रेट, आई विल आल्सो रिग्रेट दैट आई विश आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। हम सब लोग जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, विदाउट फोकस काम करते हैं, इसलिए हमें वो हार्ड भी लगता है। अगर हमें ये पूरी क्लैरिटी होगी हमें चाहिए क्या, कैसे करना है, तो इट विल बिकम मच सिंपलर। Second, do you know this? Do you recognize this gentleman in the picture? Anybody? Aditya Parekh. Aditya Puri, right? Sorry, Aditya Puri, right? हाँ, तो ये HDFC चेयरमैन, ये अभी रिटायर हुए हैं। ये करीब 24-25 साल इन्होंने सर्व करा है। और आज HDFC जो बैंक है वो इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। दीपक पारेख इनको लेके आए थे 94 में, जब वो सिटी बैंक के CEO थे मलेशिया में। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और 94 में इन्होंने HDFC बैंक स्टार्ट किया था। ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनी बैंक इन इंडिया एंड पॉसिबली आउटसाइड इंडिया एज वेल। इनकी एक बहुत अच्छी थ्योरी है, ये पूरी लाइफ इन्होंने इस थ्योरी से जी है। और अगर आप कभी इनके बारे में पढ़ेंगे, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बट दिस इज व्हाट ही हैज शेयर्ड अगेन एंड अगेन इन द मीडिया, दैट एक ब्रायन डायसन थे, कोको कोला के चीफ, CEO कोको कोला के चीफ थे। ही व्हेन ही वाज लीविंग कोको कोला, he shared this 30-second speech, और उस स्पीच में उन्होंने 5 balls थ्योरी बताई थी। और सब आपको पता होगी लेकिन मैं वापस से रीट्रेट कर रहा हूं so that it remains your awareness। उन्होंने, आदित्यपुरी बोलते हैं कि हमारी लाइफ में ना 5 balls हैं जो हम हवा में जगल कर रहे हैं। At any point of time, these are the 5 balls we are juggling with, important 5 balls. There will be many more. So he says the first ball is, we call it work. Second ball is family, then health, then friends, and then spirit. अब मुझे ये बताइए, अगर ये 5 balls को, ये 5 जो एरिया है, does it complete your life? Can I safely assume that for all of us? Yes or no, guys? Yes. ठीक है। इसमें से एक बॉल का कलर अलग है। ये क्या बता रहा है? ये जो पिक्चर है, ये बॉल किसकी बनी हुई है?
वर्क वाली जो बॉल है ये किस चीज की बनी हुई है? मेटल की? नहीं, ये रबर की बनी हुई है, और बाकी की रबर लग जितनी रहा भी है। बॉल हैं वो ग्लास की हैं। अच्छा, ओके। पर्पस ये है इसको बताने का कि हम ये पांचों बॉल हवा में हैं, हम इसको जगल करते रहते हैं। आप थोड़ा सा इसको अपने विजुलाइज कीजिए अपने माइंड में आंख बंद करके कि आप वर्क को, फैमिली को, हेल्थ को, फ्रेंड्स को, स्पिरिचुअल उसको जर्नी को, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट एरिया, और आप इसको जगल कर रहे हैं। आपके हाथ में वर्चुअली 5 बॉल्स हैं, और 5 में से एक बॉल है वो रबर की है, और ये 4 बॉल है वो ग्लास की है। ये मुझे बताइए, जब ग्लास की बॉल हवा से नीचे जमीन पे गिरती है तो क्या होता है? It will break. और ब्रेक होने के बाद कैन यू जस्ट रीअसेंबल इट? हाँ जी। नहीं हो सकता ना, टूट गई तो टूट गई कांच की बोतल, है ना। कांच की जो बॉल है, और जो रबर की बॉल होती है, जो टेनिस की बॉल होती है, जब वो नीचे जमीन पे गिरती है तो क्या होता है? बाउंस करती है। It bounces back, exactly. So the work is that ball in your life, which in case you drop, it will automatically bounce back. But out of the other 4 balls, which are very important, which are made of glass, if your health gone is gone, if your family gone is gone, if your friends are gone or gone, आपने स्पिरिचुअल उस पर नहीं चले तो गए, वो आप वापस नहीं ला सकते। तो आपको हमेशा स्केड्यूलिंग करते समय, जो मैंने जार ऑफ लाइफ वाली बताई, ब्रोनीवेयर के बारे में बताया, द टॉप मोस्ट रिग्रेट, आपको उतना काम नहीं करना है कि लास्ट में रिग्रेट हो, यार मैं इतना काम करने की जरूरत नहीं थी, किस लिए किया मैंने ये काम। आपको होर्डर नहीं बनना है लाइफ में। वी सम वॉट और अदर, हम लोग जिंदगी की रेस में जब 30, 40, 20 ईयर्स पहले भागना शुरू किया था, हमें कुछ चाहिए था, वो हमें पता नहीं बहुत पहले अचीव हो चुका है, बट तब भी हम भाग रहे हैं। वी हैव बिकम लिटरली hoarder of money, hoarder of wealth, and we are not able to spend or utilize that. So please, it's my humble request, please keep this awareness in your mind through these 3 stories. One, the video Jar of Life. Second, the Brownieware, please read that book, the top 5 regret of dying people. And the third, Mr. Aditya Puri's advice, which will help you in your life. So this was I wanted to share you in scheduling. And now let's, now I am super excited to give you the real deal, the Brahmastra of ISD. So ISD is like a Brahmastra. अभी जो मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई वो केवल 10% था, और अब जो आपको मिलने वाला in next 25 to 30 minutes is the real deal. So guys, tell me, are you excited or super excited? If you are excited, type excited. If you're super excited, please do that, and let me know your emotional state in the chat box. Guys. So this DDS is going to take away all your problems, all your execution worries, and you're going to be super effective. Super excited, super. So I am also equally excited when the DDS comes. It gives me goosebumps. So when this section comes in my presentation, it gives me goosebumps, because whatever I have been able to achieve in my life, it's because of DDS, guys. It's because of DDS. So this is the same technology I'm going to share with you today. मुझे ये बताइए कि इस पिक्चर में जो ये बंदे ने कुछ पकड़ा हुआ है हाथ में, इसमें क्या दिख रहा है? What it is giving you? इसका क्या मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? Give me one word which is coming in your mind after seeing this picture. Focused approach. Focus. Absolutely. So we are on the same page. You all are smart, intelligent people. So this is the focus, right? So जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, focus is the real deal of life. अगर आप focused हैं तो आपकी effectiveness and productivity आपका by product है. Do you agree with me or not? अगर आप लाइफ में फोकस्ड हैं तो प्रोडक्टिविटी इज गिवन. डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस, एब्सोल्युटली. यस चंदन, यस. ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू. तो ये मैं आपको पहले इसको डिकोड करता हूं. डीप डाइव सेशन. सो DDS stands for deep dive session, and I want you to put it as a brain tattoo. So I want everyone to type DDS in the chat box so that it gets imprinted in your subconscious mind. Everyone please type DDS in capital, DDS in capital, so that you need not to remember it. It's like done deal. Deep dive session, DDS. Guys, everyone, come on. Whosoever not typed, please do that. I am watching each one of you.
DDS. So right now we have almost other than me there are 14 people. DDS. Super. Thank you. जो DDS है मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं. ये ऊपर क्या दिख रही है आपको? बुलेट दिख रही है. बुलेट में बुलेट इज लाइक ISD. कंप्लीट बुलेट इज लाइक ISD फ्रेमवर्क. अगर आइडिएशन को हम कहें तो ये प्राइमर का काम करेगा. जो पीछे है ये प्राइमर है बुलेट के अंदर. जो आगे की जो बुलेट है वो है आपकी स्केड्यूलिंग, और जो अंदर का जो मसाला है, जो बारूद है, वो है आपका DDS. दिस इज द केसिंग एंड द पाउडर. सो द रियल जो पावर मिलती है बुलेट को वो उसके बारूद से मिलती है, उसके एक्सप्लोजन से मिलती है. सो दिस इज द DDS फॉर यू. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट टुडे फ्रॉम दिस सेशन. अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. जब आप अगर फोकस हो जाएं लाइफ में तो आपके लिए क्या पॉसिबल हो जाएगा? थोड़ा सा इमेजिन करिए, थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी को निकालिए बाहर, और मुझे ये बताइए कि अगर आप फुल्ली फोकस्ड हो, मतलब आप ये अज्यूम कर लीजिए आप हो गए हो फोकस्ड. अंदर से आपको नहीं लग रहा होगा आप कैसे फोकस होंगे, क्योंकि हमारी सबकी अपने आप से शिकायत रहती है. अगर आप फोकस हो गए, ओके, पीस ऑफ माइंड, वेरी गुड विकास. और क्या मिलेगा आपको? What would become possible for you? What would become available for you if you are fully focused? Focus like, you know, मतलब मजा आ जाएगा आपको. Success, can achieve anything in life. Great. So this is what you are going to take away, that आप जब यहां से उठेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि जिंदगी में सब कुछ पॉसिबल है और वो मेरे हाथ में है और वो मैं कर सकता हूं विद ईज. यहाँ पे जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं वो आपको स्ट्रेस नहीं देगी जिंदगी में कभी, और बहुत सिंपल है, इजी टू यूज है. मुझे अभी तक बताइए, अभी तक मैंने आपको जो जो चीजें बताई वो इजी टू यूज है या नहीं है? प्रैक्टिकल है या नहीं है? यस यस, सब लोग कर सकते हैं ना? ठीक है. तो ये जो DDS अब आपको मिलने वाला है, ये मतलब बेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे आप जो wherever you and whatever you set your eyes at, and you'll be able to achieve with ease, happiness and peace of mind. This is my commitment to you. Great. अच्छा, मुझे बताइए जो अगली पिक्चर है, ये एक्सपेरिमेंट हम सबने बचपन में किया है. Do you recall that? Yes. All of us have gone. कार्बन पेपर के साथ किया. कार्बन पेपर सबने किया है ना? अब मुझे ये बताइए, अगर हम आज मिस्टर आइंस्टाइन, जस्ट इमेजिन अगर आइंस्टाइन आज जिंदा हो जाए, आ जाए हमारे सामने इसी समय, और वो इसको जो ये इन्होंने लेंस लिया हुआ है इसको वो हिलाते रहें और तेज धूप हो, तो क्या ये कागज जलेगा? नहीं. तो वो तो आइंस्टाइन है, जल जाना चाहिए, वो तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं. क्यों नहीं जलेगा? उनको तो सारी नॉलेज है. So what is the reason? Nature of law works here. Yes. And what it is causing? मतलब ये जलता क्यों है? All the energy is concentrated at one center. एनर्जी, हाँ, एनर्जी सब तरफ, लेकिन इसका जो मेन, अगर आप इसमें देखेंगे ना, वो फोकस. अगर इसका फोकस जरा सा हिला डुला तो आप कुछ भी कर लीजिए, 10 घंटे खड़े रहिए धूप में, कुछ नहीं होगा. डू यू अग्री विद मी और नॉट? तो ये जो DDS है ना, DDS जो मैं आपको बता रहा हूं, दिस DDS वर्क्स एग्जैक्टली लाइक दैट. इट गिव्स यू फोकस ऑन ऑटो पायलट. इट गिव्स यू फोकस ऑन ऑटो पायलट कि आपका मन भी होगा तो भी आप डेविएट नहीं हो पाएंगे वंस यू एम्प्लॉय DDS इन योर लाइफ. राइट? तो आप चलते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं फोकस के, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए. ये जो बिल गेट्स है ना, बिल गेट्स का नाम सुना है माइक्रोसॉफ्ट के, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाई है, सबने सुना होगा, सबने यूज किया. तो बिल गेट्स क्या करते हैं, हर साल 7-7 दिन के लिए 2 ब्रेक लेते हैं, 7 डेज के लिए. और उन्होंने एक सीक्रेट अपना 2 स्टोरी केबिन बनाया हुआ है पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में. एक जगह है वहां पे, केवल उनका एक केयर टेकर है और वो उनको 2 मील देता है. वो 2 ही मील खाते हैं दिन में. और जितने भी आज तक माइक्रोसॉफ्ट में चेंजेस आए हैं या जो प्रोडक्ट बने हैं, या जो सबसे बड़ी बात है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था 95 के बाद, वो बिल गेट्स को उन्हीं थिंक वीक, वो उसको थिंक वीक बोलते हैं, साल में 2 बार ब्रेक लेते हैं वो, वहीं उनको ये सब चीजें आई. ये बेसिकली वहां वो कहते हैं कि मुझे, मैं फोकस होके काम कर पाता हूं. दैट इज एग्जांपल नंबर 1. आपने हैरी पॉटर का नाम सुना है? हैरी पॉटर की जो ऑथर है उसका शायद नाम ना भी सुना हो, बट हैरी पॉटर का नाम सबने सुना होगा, आई एम श्योर. तो J.K. रोलिंग इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर. एंड यू नो उसने क्या स्ट्रेटेजी करती है वो J.K. रोलिंग? She usually checked herself in a very luxurious hotel, and जब तक उसकी नॉवल खत्म नहीं हो जाती तब तक वो उस होटल से बाहर नहीं निकलती.
So this is again extreme way of focusing. करण जौहर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी हैं, चाहे DDLJ की लिखी है और जितनी भी आगे हिट उन्होंने दी हैं, वो सब कहानियां उन्होंने वो 1-2 महीने के लिए लंदन चले जाते थे जहां उनको कोई नहीं जानता और वहां उन्होंने सारी कहानियां लिखी हैं. तो दीज आर द एक्सट्रीम एग्जांपल्स ऑफ फोकस, क्योंकि ये लोग तीनों लोगों के पास DDS नहीं था. अगर बिल गेट्स, करण जौहर और JK रोलिंग के पास DDS होता तो इनको ये सारे एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेने पड़ते. लेकिन आप लोगों के पास DDS है तो आपको ना तो कहीं लंदन जाना, ना कहीं पैसिफिक वेस्ट में जाना, ना कहीं होटल में चेक इन करना. बिना उसके रूटीन में आप वो सब अचीव कर पाएंगे जो ये लोग अचीव कर पाए. तो यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग. ये आप सब लोग एग्री करते हैं कि हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं थ्रू फोकस. So now let me give you that technology for which you are waiting for which you are here. So that technology name is DDS, which is Deep Dive Session. इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जब आप डीप डाइव करते हैं किसी सेशन में तो वो उसको हम बोलते हैं DDS. अब उसको कैसे यूज करना है उसको समझिए आप बहुत ध्यान से. ये अगले 15 मिनट मुझे आपके बहुत फोकस चाहिए. फोकस का टॉपिक है. अगर आप इसको 15 मिनट जो भी इस समय आप कर रहे हो सब छोड़ दीजिए. Come closer to your screen and pay attention to my voice. इस समय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये स्क्रीन और मेरी आवाज होनी चाहिए, तभी आपको इसमें वैल्यू मिलेगी, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे लाइफ में. सो ऑल ऑफ यू आर फोकस्ड राइट नाउ. कैन आई अज्यूम दैट? इफ यस, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स. अपने आप को रीअलाइन कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए और फोकस होके पूरी फोकस के साथ सुनिए इसको. ठीक है, सुपर 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 सुपर. थैंक यू सो मच गाइस. आई एम लविंग योर पार्टिसिपेशन, आई एम लविंग योर अटेंशन. Thank you guys. You are the super intelligent. तो DDS सुनिए. DDS क्या है? DDS is very simple. It is a 60 minutes. How much? 60 minutes. 60 minutes appointment with yourself. आप जब क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट होता है और आप मीटिंग में होते हैं तो आप पूरी तरह से फोकस होते हो, क्लाइंट से बिजनेस लेना होता है. यस और नो? इधर उधर अपना मोबाइल चेक नहीं करते हो ना उस समय जब क्लाइंट के साथ मीटिंग में हो, तो पूरा अटेंशन क्लाइंट को देते हो आप. तो DDS क्या है? ये सेल्फ अपॉइंटमेंट है, आपके साथ है. ये अपॉइंटमेंट किसी और के साथ नहीं है. और आपको पता है दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी पर्सन कौन है आपके लिए? डू यू नो दैट? योरसेल्फ. एग्जैक्टली. तो यू नीड टू रिक्लेम दैट पोजीशन फॉर योरसेल्फ एंड यू नीड टू मेक योरसेल्फ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ. और जब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ आप होते हो तो आप उस समय डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो सकते. यू कांट अफोर्ड टू बी डिस्ट्रैक्टेड. अब आप कहेंगे यार लेकिन माइंड है हमारा तो इधर उधर चला जाएगा, चंदन कैसे करें? तो उसका मैं आपको एक रिचुअल बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा. उसको बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई हेर फेर नहीं करना है. जैसे दिवाली की पूजा करते हो और आपके घर में 5 रिचुअल बताए गए, बिल्कुल वैसे ही करते हो. उसके अलावा करोगे तो आपको डर लगता है. तो यही आपको डरना है. यहाँ पे DDS में जरा भी इधर उधर नहीं करना है. जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसा करना है और आपको रिजल्ट आने ही आने हैं. गिवन है, ये मेरी गारंटी है. आपको मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, मेरी कॉलर पकड़ लेना करना है. अब आपको ये जो 5 स्टेप्स हैं, 5 इसेंशियल्स ऑफ डूइंग DDS, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए. लेकिन इसको आपको बस दिमाग में फ्रीज कर लेना है. बहुत सिंपल है, इसलिए आपसे छूट सकते हैं. मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं. सबसे पहला जो काम करना है आपको DDS जब आप स्टार्ट करें, जो 60 मिनट्स का जो अपॉइंटमेंट है वो आपको अपने साथ देना है. आपके सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएंगे. कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करूं, सब आपके क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, अगले 5-7 मिनट बिल्कुल ध्यान से सुनिए. आपको सबसे पहला एक फोन का रिचुअल करना है. जब आप DDS करने बैठे 60 मिनट का जो आपका अपने साथ अपॉइंटमेंट है, तो आपको एक फोन रिचुअल करना है. फोन रिचुअल क्या करना है? आपको अपना फोन अपने हाथ में लेना है, बड़े प्यार से, एकदम इमोशनल होके, मतलब इसको पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ फोन को हाथ में लेके. आपके फोन में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आप हाईलाइट मैंने किया हुआ है इस पे स्क्रीन पे. उसको बोलते हैं फ्लाइट मोड. सबके फोन में है भाई? किसी के फोन में ऐसा है कि फ्लाइट मोड ना हो? ठीक है, तो सबके फोन में फ्लाइट मोड है. आपको वो फोन निकालना है बड़े प्यार से और अपने फोन को फ्लाइट मोड पे करके आपको क्या करना है, उसको अपनी डेस्क में या अपने बैग में खिसका देना है. फोन को अपने पॉकेट में नहीं रखना है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लिसन वेरी केयरफुली. आपको अपना फोन फ्लाइट मोड पे डाल के पॉकेट में नहीं रखना है. उसका रीजन ये है, आपका हाथ बार बार आपके पॉकेट में जाएगा हर 15 सेकंड, हर 1 मिनट के बाद, क्योंकि आप यूज्ड टू हैं. जब आपको अपना फोन नहीं मिलेगा अपनी पॉकेट में तो आपको याद आ जाएगा, अवेयरनेस में आ जाओगे आप DDS कर रहे हो और DDS में फोन अलाउड नहीं है. आपका अपने साथ अपॉइंटमेंट है. जैसे आप क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट में हो तो आप अपना फोन नहीं चेक करते, इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही होती है.
सेम काम आपको अपने साथ करना है डीडीएस में। अपना फोन निकालना है, उसको फ्लाइट मोड पे डालना है, और उसको अगर आप डेस्क पे बैठे हैं तो आप उसमें थोड़ी दूर रखिए, जहां पर रीच आपको उठना पड़े, ऐसी जगह रखिए फोन, ठीक है। 60 मिनट कैन यू अफोर्ड? बहुत मुश्किल नहीं है गाइस, यस और नो? 60 मिनट आप रह सकते हैं अपने फोन के बिना? एब्सोल्युटली रह सकते हैं, ज्यादा नहीं है 60 भी रह मिनट। सकते हैं। 60 मिनट मांग रहा हूं आपसे, 60 मिनट तो नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है 60 मिनट, ज्यादा नहीं। उसके बाद आप भरपूर उसको यूज करिए, व्हाट्सएप करिए, फेसबुक करिए, इंस्टाग्राम करिए, जो करना है करिए, वीडियो देखने हैं, जो करना है करिए। सेकंड स्टेप, व्हेन टू डू डीडीएस। ये डीडीएस जो 60 मिनट का अपॉइंटमेंट है, करना कब है अपने साथ? उसका सबसे अच्छा समय होता है फर्स्ट हाफ, मतलब सुबह अगर आप, मैं फर्स्ट हाफ को 8 से 12 बजे के तक का टाइम, उस समय आपकी एनर्जी सबसे अच्छी होती है, आपकी विल पावर बेस्ट होती है, आप फोकस करने की पोजीशन में होते हो। तो सबसे अच्छा टाइम है, कोई भी एक समय चूज कर लीजिए जो आपके साथ करता है। कई 4 AM वाले लोग भी होंगे यहाँ पे, 5 AM वाले लोग भी होंगे, और 8 AM वाले लोग भी होंगे जो सुबह उठते हैं। तो जो आपको सहूलियत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कब सोते हैं कब उठते हैं। मॉर्निंग में जो आपका फर्स्ट हाफ हो, अगर आप रात की शिफ्ट है आपकी तो आपके लिए फर्स्ट हाफ अलग हो जाएगा। जो भी आपका फर्स्ट हाफ हो दिन का, वो आप इसको उस समय आप कर सकते हैं। वो 1 घंटे का जो भी आप अपॉइंटमेंट अपने कैलेंडर में फिक्स कर दीजिए, वो आपका, उसमें आप उसका जो टाइटल लिखेंगे वो लिखेंगे डीडीएस, ठीक है। अब आपको वेयर टू डू डीडीएस, करना कहां पे है, जगह कौन सी होनी चाहिए डीडीएस करने की? बहुत सिंपल है, आपके घर के आसपास। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने बीसीआई किया होगा, बिजनेस कोचिंग इंडिया, तो वो तो वैसे ही फैमिलियर होंगे कॉफी शॉप एनवायरनमेंट से। जिन्होंने नहीं किया उनको मैं बता देता हूँ, डीडीएस आपको हमेशा यूजफुल रहेगा जब आप इसको किसी कॉफी शॉप में करेंगे, बेसिकली अपने घर और ऑफिस की स्पेस से बाहर। वो इसलिए कि घर और ऑफिस में आपकी वो कंडीशनड स्पेस होती है, वहां आपकी ऑलरेडी मेमोरी अलाइंड होती है, हर जगह आपका दिमाग ऑलरेडी चल रहा होता है जब आप उस स्पेस में आते हो। जो उसके अलावा जो स्पेस होती है, कहीं भी आप करोगे तो डीडीएस आपको मोस्ट अच्छा, सबसे अच्छी जगह है। सबसे अच्छी कॉफी शॉप है स्टारबक्स। मैं उसके लिए कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट देयर यू गेट टू हैव अ गुड स्पेस, गुड एम्बियंस एंड अ गुड कॉफी एज वेल, राइट। तो आप किसी भी कॉफी शॉप में, चाहे 5 स्टार की हो, कैफे कॉफी डे है, बरिस्ता है, जहां भी आपको ठीक लगता है, कोई आपके आसपास हो, वहां पे आप डीडीएस करिए। अच्छा, करना क्या है? आप सबसे बड़ा आपके दिमाग में आ रहा होगा, चंदन ये तो आपने बता दिया डीडीएस डीडीएस डीडीएस, पर करे क्या डीडीएस में? तो डीडीएस में आपको वो टॉपिक्स उठाने हैं जो आप सबसे ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ। आपको वो चीजें उठानी है डीडीएस में जो आप लाइफ में सबसे ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं और वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, आप सब बिजनेस ओनर्स हैं, आपको अपनी कंपनी का प्रोफाइल अपडेट किए हुए किसी को 2 साल हो गया होगा, किसी को 5 साल हो गया होगा, किसी को 4 साल हो गया होगा। इज इट ट्रू और नॉट गाइस? टेल मी, ऐसा है? किसी को अपनी कंपनी की वेबसाइट को अपडेट किए हुए सालों हो गए होंगे। बहुत सारे ऐसे आपको पता है इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे, हाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता है करना है, लेकिन अपने आलस में आप उसको इधर उधर करते रहते हो। तो जो भी आप रेजिस्ट कर रहे हो, डीडीएस का टॉपिक का लिटमस टेस्ट क्या है, सुन लीजिए ध्यान से। जो भी आप रेजिस्ट कर रहे हो वो, उसके लिए आपको डीडीएस करना है। डीडीएस किसी टॉपिक के लिए 4 डीडीएस लगेंगे, किसी के लिए 10 लगेंगे, किसी के लिए 15 लगेंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। वो डीडीएस में आपको लेने हैं और आपको ऐसा मैजिक मिलने, ऐसा अनुभव होने वाला है, ऐसी जैसे कि जिनी आपके पास आ गई हो। आपके काम ऐसे खत्म होंगे जस्ट लाइक स्नैपिंग ऑफ फिंगर्स। मतलब कोई भी आप काम ले लीजिए जो आप रजिस्ट कर रहे हो और वो आप उसका 60 मिनट का डीडीएस करिए और आपके काम ऐसे मक्खन की तरह होने लगेंगे। आप कहोगे ये मैं ही हूं जिसको मैं इतना निकम्मा मानता था, जितनी मेरी इतनी कंप्लेन थी, इतनी रिग्रेट्स थी अपने साथ। एंड यू विल बिकम लाइक एकदम मैजिशियन बन जाओगे आप अपनी लाइफ में। तो ये मैं आपको एक और आपका सवाल होगा कि भाई डीडीएस कितने करें चंदन, है ना? डीडीएस आपको बहुत सिंपल है, मैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम बता देता हूं। मिनिमम आपको डेली 1 करना है, मिनिमम आपको डेली 1 करना है। वीक में कितने हो गए? मैं सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं कर रहा, वो आपका फैमिली डे है, लीजर डे है। 5 वीक में करने हैं। 1 वीक में कितने हो गए? 5। 1 महीने में कितने हो गए गाइस? कैन समबडी गिव मी अ मैथ, अ फिगर? 20। और साल में कितने हो गए? 360। ना कितना? 12 24 240। तो आप मुझे ये बताओ कि 240 घंटे
अगर फोकस्ड आपके पास हो, जिसमें आपको डेली बेसिस पे केवल एक डीडीएस निकालना है, केवल 1 घंटा निकालना है, आप सब में से हर आदमी 8 से 10 घंटे काम कर रहा है इन योर वेकिंग आवर्स. इज इट ट्रू और नॉट? Yeah. तो 8 से 10 घंटे में से क्या 1 घंटा आप निकाल सकते हो अपने लिए? यस. केवल आपको उसमें 240 घंटे में, गाय जस्ट लुक एट द पावर ऑफ डीडीएस. आप क्या क्या नहीं अचीव कर सकते, क्या क्या अचीव नहीं कर सकते. आप, अच्छा है कि दिन में दो डीडीएस कर पाए तो इट्स लाइक ग्रेट, लेकिन एटलीस्ट 1 डीडीएस आपको करना ही है. आप इसका एक अपना वो बना लीजिए ट्रैकर, ताकि आपको पता रहे कितने डीडीएस करे. सबसे अच्छा ट्रैकर का तरीका है कि अपने जहां बैठते हो डेली वहां पे एक वो पेज चिपका दीजिए और वहां पे आप मार्क करना शुरू कर दीजिए, आज मेरे कितने डीडीएस हुए, इस हफ्ते कितने डीडीएस हुए. अगर आप उसको मॉनिटर या मेजर नहीं करेंगे तो ये आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा. ठीक है, वॉट एवर यू मेजर इट वर्क्स, राइट. तो मैं इसको समराइज कर रहा हूं. 1, यू नीड टू डू अ फोन रिचुअल बिफोर डूइंग द डीडीएस, अदरवाइज डीडीएस विल नॉट हैपन. सेकेंड, डीडीएस आपको करना है फर्स्ट हाफ में, when your energy or willpower is at the peak. Second, coffee shop is the best place to do DDS. Third is आपको वो टॉपिक उठाना है जिसको आप सबसे ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको एटलीस्ट 1 DDS a day, 2 कर लें तो ग्रेट है. 1 DDS is like enough. आपका कोई भी लाइफ में इश्यू हो वो 110% सॉर्ट आउट हो जाएगा. और ये आप करके देखिए, फिर मेरे पास आइए. अगर नहीं वर्क करे तो मैं आपको बताऊंगा कहां पे इशू हुआ होगा. अगर आप इसको एकदम वर्बटिम जो मैं आपको बोल रहा हूं करेंगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले. Thousands and thousands of people are experiencing this. Guys, I can tell you with results people have. Every now and then I get, WhatsApp from them with a gratitude कि यार इसने जिंदगी बदल दी हमारी. ठीक है, अब मुझे बताओ, is it okay if I share few examples what I did accomplish through DDS? Will it be fine with you if I share few examples? Sure. Yes. Is it okay? Please, Yes, absolutely. It will be great. Thank you so much. Thank you so much for allowing me. तो ये इस बंदे को जानते हो आप जो ये स्क्रीन पे है? Warren Buffett. वॉरेन बफेट, राइट. ये करीब शायद 92 या 93 के हो गए हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर, इसकी इन्वेस्टर फिलॉसफी, और ये वन ऑफ द रिचेस्ट रहे हैं एक समय पे, जब तक ये न्यू एज बिजनेसेस नहीं आए थे. तो ये 30-40 साल आई थिंक रिचेस्ट मैन रहे हैं, टॉप 5 में रहे हैं. तो इनके बर्कशायर हाथवे के ना ये हर साल अपने शेयर होल्डर को एक लेटर लिखते हैं 15 से 20 पेज का. और अगर आप सब बिजनेसमैन हैं, अगर आपने ये लेटर नहीं पढ़े तो जरूर पढ़िए. आप में इसको इतनी विजडम मिलेगी, इतनी नॉलेज मिलेगी, इतना एक्सपीरियंस मिलेगा, आप कहोगे कि मैंने क्यों नहीं पढ़े ये पहले. ठीक है, तो ये इनके लेटर थे करीब 40 साल के. जब से इन्होंने बर्कशायर हाथवे शुरू की थी 65 में, तब से ये अपने शेयर होल्डर को हर साल एक 10 से 15 पेज का पूरे साल का एक चिट्ठा बताते हैं और उसमें बहुत सारे विजडम के नगेट्स देते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलते. ठीक है, तो मेरे को ये पढ़ने का बहुत शौक था कि ये 50 साल के लेटर में पढ़ूं, लेकिन मैं अगेन टाइम की कॉन्वर्सेशन है, टाइम आप करोगे कहां से, और 50 साल के लेटर पढ़ने मतलब 20 पेज इंटू 1000 पेज पढ़ने. तो मैंने क्या किया, एक बड़ा सिंपल सा डीडीएस लगाया. मैंने डीडीएस कैसे लगाया, हर संडे मैं 1 घंटे का डीडीएस अपने साथ बैठता था 11:30 से 12:30, और हर संडे मतलब एवरी मंडे मेरी जो ईए थी ऑफिस में वो मुझे हार्ड कॉपी दे देती थी उसका लेटर का, और पुराने वाली कॉपी मेरे से वापस ले लेती थी. तो हर संडे मैंने ये डीडीएस करके इट टुक मी अप्रोक्सीमेटली 1 year and 1 month, मतलब करीब करीब 60 हफ्ते लगे, 60 weeks, and I could accomplish reading these letters. और मैं आपको बता नहीं सकता the kind of knowledge, the kind of wisdom I got, and जो मैंने जब उसको अपने बिजनेस में अप्लाई किया, अपनी लाइफ में अप्लाई किया, इट्स लाइक अमेजिंग गाइस. ये खजाना है, मैं आपको बता रहा हूं. तो ये मैं अकम्प्लिश कर सका केवल डीडीएस की टेक्नोलॉजी के थ्रू. सेकेंड, अगर आपने जस्ट फॉर द सेक, यहाँ अतुल जी है, मैं उनको एक टेस्टिमोनियल भी देना चाहूंगा. अतुल मोहन ने हमारी वेबसाइट बनाई थी, इसका लुक एंड फील पूरा अतुल ने क्रिएट किया था, बट इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है, एंड इट्स अ टेक्स्ट रिच हैवी, बहुत सारा टेक्स्ट है इसके अंदर, वो पूरा टेक्स्ट मेरा पर्सनल मेरे हाथ से लिखा हुआ है. और आपको अचंबा होगा कि इतना टेक्स्ट चंदन के पास समय कहां से आया इतना लिखने का. Guys, I employed DDS and it took around 30 DDS, मतलब 30 घंटे लगे मुझे over a period of 3 months. मुझे 3 महीने लगे. ये वेबसाइट हमारी 8 साल से नहीं बनी थी. जो पुरानी वेबसाइट थी आप उसको देखते बहुत ही थकी हुई थी,
ये 3 या 4 से शायद 2016 में बनी थी, अब वापस से ड्यू हो गई, चेंज करना होगा। एक बार आप जाके देखिएगा blueconsulting.co.in, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, और एक बार ये वेबसाइट जाके देखिएगा। इसमें जो मेहनत लगी वो केवल डीडीएस की वजह से पूरी हो पाई, अदरवाइज हम 5-7 साल से इसको डेफर कर रहे थे। अगर आपके लिए भी वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, विच इज इंपॉर्टेंट आई नो फॉर एवरी बिजनेस, तो आप डीडीएस के थ्रू अपने वेबसाइट को कंप्लीट कर सकते हैं। और वेबसाइट में आपको पता है सबसे बड़ा रोड ब्लॉक कहाँ पे आता है, जब वेबसाइट डिजाइनर आपसे कहता है भाई साहब टेक्स्ट बना के दे दो, आप कहते हैं टेक्स्ट क्या होता है, हमें तो यही पता था कि डिजाइन ही होता है सब कुछ, लेकिन यू नो दैट 80% द हार्ट ऑफ योर वेबसाइट इज योर टेक्स्ट। तो ये पूरा टेक्स्ट मैंने खुद अपने हाथ से लिखा है, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, विदाउट एनी वेटिंग, विदाउट एनी कॉपीराइटिंग, एंड इट ओनली बिकेम पॉसिबल थ्रू डीडीएस। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत समय से मेरा मन था, जो टेक्नोलॉजी आज मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं बहुत लोगों को बताता था, तो लोग मुझे कहते थे चंदन कैन यू पुट इट डाउन इन द फॉर्मेट ऑफ अ बुक। सो गाइस राइट नाउ 10:44, मैं आपसे शायद 5-7 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा, सो प्लीज बेयर विद मी एंड फॉरगिव मी फॉर दिस एडिशनल टाइम व्हिच आई एम ऑक्यूपाइंग फ्रॉम यू। So this book I could write in, it was my dream to write a book, और मुझे लगता नहीं था मैं कभी ऑथर बन पाऊंगा। So this came true through the power of DDS। मैंने जुलाई 2020 में ये बुक लिखना शुरू किया, और नवंबर 2020 जब मेरा बर्थडे था 11 नवंबर को, I gifted this gift to myself, and this book was released in the International Book Fair in February 2021, just before the COVID, and right now this is a bestseller in its category. So if you haven't read this book, please read this book। और scheduling में जो डिटेल मैं आपको नहीं बता पाया कि टू डू लिस्ट कैसे बनानी है, कैलेंडर कैसे बनता है, और उसके साथ एक पार्किंग टूल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से आपका टू डू लिस्ट और कैलेंडर काम नहीं करते, दैट आई हैव शेयर्ड इन डिटेल। और इसमें बहुत सारे नए टूल्स और नई टेक्नोलॉजीज भी, बहुत सारा इसमें मसाला है आपके लिए, और इससे आपको रियल में जो सारे प्रैक्टिकल चीजें हैं वो सब प्रैक्टिकल टिप्स इसमें आपको दी है इसमें। तो ये बुक मैं लिख पाया केवल डीडीएस की वजह से। जुलाई 2020 में शुरू किया था, और मैं डेली एक डीडीएस लगाता था, 1 घंटा, दैट्स इट, एंड आई कुड बिकेम एन ऑथर। इट्स सो फुलफिलिंग। सिमिलरली लास्ट कोविड में जब 2020 में सॉरी मैंने गलत बोला आपको, 19 में मैंने लिखी थी ये बुक, और फेब 20 में रिलीज हुई थी, नॉट 21। ये कोविड का समय कई बार गड़बड़ हो जाता है बोलने में। सेम मेरा एक ड्रीम था कि दैट आई बिकम अ कोच। तो मैंने क्या किया कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सब बड़ी कंपनीज है, लाइक 200-250 करोड़ से ऊपर की कंपनीज जिनको हम सर्व करते हैं, और सीएफओज आर अवर यूजुअल क्लाइंट्स। तो मेरे को ये था कि जब कोविड आया तो सबका सीएफओज का मेन कंसर्न था कि हम कॉस्ट को कैसे कम करें, और कॉस्ट रिडक्शन मेरा फेवरेट टॉपिक है फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स, और हम काम भी यही करते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट आउटसोर्सिंग में कि कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए। सो व्हाट आई डिड, वेरी रिलक्टेंटली आई क्रिएटेड दिस मास्टर क्लास इन अप्रैल 2020, एंड आई वाज वेरी रिलक्टेंट कि पता नहीं जब मैं शेयर करूंगा तो उनको फायदा होगा या नहीं होगा। बट गाइज लेट मी टेल यू, आई कुड क्रिएट दिस मास्टर क्लास आउट ऑफ नथिंग, and till date out of 4 masterclass, more than 1150 CFO, CEOs and business owners have attended this masterclass. And after that I could also start a paid course of 6 weeks, so that has been attended by more than 150 senior people. So it became possible only through the power of DDS. मैं आपको ये ब्रैगिंग करने के लिए नहीं शेयर कर रहा, अपने बारे में बड़ा बताने के लिए नहीं, मैं आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, और उससे मुझे रिजल्ट मिलते हैं, और रिजल्ट मिल रहे हैं कंसिस्टेंटली, और जितने भी लोगों ने इसको यूज किया है उनके सबको रिजल्ट मिले हैं। तो मैं आपको ये, इट्स लाइक अ लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो नेचर का लॉ होता है ना, ये ISD फ्रेमवर्क इज लाइक अ लॉ ऑफ नेचर। अगर आप इसको यूज करोगे तो ये मिलेगा ही। अब मैं आपको एक क्विक रिकैप कर देता हूं। टाइम इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स विच वी हैव अंडरस्टूड। टाइम गॉन इज गॉन फॉरएवर, सो प्लीज यूज इट वाइजली। You need not to manage time, you need to manage the distractions, और distraction का एंटीडोट मैंने आपको दे दिया है आज, ISD फ्रेमवर्क। ISD में आपको आइडिएशन है पहले आपको 2 पावरफुल क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं, और वो क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो रिलीज हो जाएगी, और आपको उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। फिर आपको मैंने स्केड्यूलिंग के बारे में बताया। आपको ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्केड्यूल क्या करना है। आपके टू डू लिस्ट के 3 कैटेगरी होगी, 3 लिस्ट होगी, एक रॉक, पेबल्स एंड सैंड। जो आपने वीडियो देखा उसको दोबारा देखिएगा।
डीडीएस जो रियल ब्रह्मास्त्र आईएसडी का है वो है डीडीएस, जिससे आप दुनिया में जो आपको एग्जीक्यूट करना हो, सबकी कंप्लेन एग्जीक्यूशन से होती है, राइट? पता हमें सब कुछ होता है लेकिन हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो डीडीएस से आपके लिए कि जीनी की तरह काम करेगा आपकी लाइफ में। केवल आपको 1 घंटा डेली डीडीएस करना है, 5 डीडीएस करने इन ए वीक। 5 एसेंशियल्स ऑफ ए डीडीएस मैंने आपसे शेयर कर लिए। तो अब मुझे ये बताइए, आपको आज आपने नाउ लेट मी आई थिंक स्विच ऑन माय वीडियो एंड मे बी let me stop sharing this. So this is what I wanted to share with you guys, and tell me how is what it was for you, and did you learn something out of it or not? Over to you guys. It was great, Chandan. Fantastic. We used to listen to you during the college days, but now you have reached a new peak in your life. Fantastic session. I myself is provide so many things related to my field, but this is amazing, and this is applicable to everyone, whether from finance or non-finance. It is applicable to everyone. Wonderful. All the best. Thank you, Rajesh. Thank you so much. Thank you so much. Yeah,